اس وقت آپ کے لیے چلتے ہیں، بلاول بھٹو گفتگو کر رہے ہیں، براہ راست آپ کو دکھاتے ہیں۔ معاشی صورتحال دن بدن بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ عام آدمی کو، عام پاکستانی کو یہ پریشانی ہے کہ وہ اپنا خاندان کے لیے، وہ اپنا فیملی کے لیے کھانا کا بندوبست کیسے کرے، وہ اپنے بچوں کو اسکول کیسے، وہ اپنے بزرگوں کا علاج کیسے کرے، بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ عام آدمی کو، عام پاکستانی کو یہ پریشانی ہے کہ وہ اپنا خاندان کے لیے، وہ اپنا فیملی کے لیے کھانا کا بندوبست کیسے کرے، وہ اپنے بچوں کو اسکول کیسے بھیجیں، بزرگوں کا علاج کیسے کروائیں، وہ اپنا بجلی کا بل کیسے بھریں، وہ اپنا پیٹرول کا بل کیسے بھریں۔ اور میں پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے پسماندہ طبقات کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس کا منشور میں آپ کے مسائل کا حل ہے۔ ہم 3 نسلوں سے اس ملک کے عوام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہر معاشی بحران سے، جب بھی معاشی بحران آیا ہے، چاہے وہ 70 کے دور میں جب شہید ذوالفقار علی بھٹو، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو آپ کا وزیر اعظم بنا، تب بھی پاکستان میں معاشی بحران تھا، ملک آدھا ہو گیا، مگر روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ نہ صرف اٹھایا، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ پہ عمل درآمد کیا۔ 80s میں، 90s میں جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے پاکستان کی معیشت کی سمت درست کرتی، پاکستان کو روزگار لائے، تو آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے شہید بھٹو اور شہید بی بی کا نامکمل مشن کو مکمل کرنا ہے۔ ہم نے وہ روٹی کپڑا اور مکان کا دعویٰ پورا کرنا ہے۔ اور آج کے حالات میں، آج کی معاشی صورتحال میں، میں سمجھتا ہوں کہ قائد عوام کا جو منشور ہے وہ وقت کا ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں پاکستان کے عوام کے ساتھ جدوجہد کروں گا، میں پاکستان کے عوام کے ساتھ مل کے کیمپین چلاؤں گا، اور انشاءاللہ تعالی ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہوگی، ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع ملے گا اس ملک کے عوام کو خدمت کرنے کا۔ اور میں یہ دعویٰ سے نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ہم ملک کے تمام مسائل کا راتوں رات حل کر سکتے ہیں، مگر میں آپ سے وعدہ کر سکتا ہوں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی تو عوام کا حکومت ہوگی، اگر پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں ہوگی تو پسماندہ طبقات کا اقتدار ہوگی، اگر پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے تو مزدوروں، کسانوں اور محنت کشوں کا حکومت ہوتا ہے، کوئی اور اقتدار میں آتے ہیں تو اشرافیہ کا حکومت ہوتا ہے، امیروں کا حکومت ہوتا ہے، بزنس مین اور انڈسٹریلسٹ کا حکومت ہوتا ہے۔ پاکستان کے عوام سے، پاکستان کے عوام نے پاکستان کی تاریخ میں جب بھی ضرورت پڑا ہے قربانی دیا ہے، جب بھی لڑائی لڑنا تھا تو قربانی دیا ہے، جب دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے تو قربانی دیتے ہیں، جب بھی IMF سے مذاکرات ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ قربانی کا وقت آ گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کا اب حق ہے کہ قربانی دینے کے بجائے وہ پوچھے کہ ہمارے لیے پاکستان کیا کرے گا، ہمارے لیے حکومت پاکستان کیا کرے گا، پاکستان کے عوام کے لیے حکومت کیا کرے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب عوام دوست حکومت بنتے ہیں تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی منصوبے آتے ہیں جو اس ملک کے غریب ترین عورتوں تک مدد پہنچواتا ہے۔ جب عوام دوست حکومت ہوتا ہے تو اپنا زمین، اپنا مکان جیسے منصوبے آتے ہیں جہاں ہم غریب عوام کو اپنا گھر کا مالک بناتے ہیں، اپنا زمین کا مالک بناتے ہیں۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی ہے تو ہم نوجوانوں کو روزگار دلواتے ہیں، ہم ان سے روزگار نہیں چھینتے۔ تو میرا درخواست ہے،
मेरा अपील है पाकिस्तान के अवाम से, आप सब से, कि एक बार फिर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दें, आप नया नस्ल के साथ दें। एक नौजवान पाकिस्तान के लिए नौजवान क़यादत की ज़रूरत है। नया पाकिस्तान के लिए जो मसाइल हमारे सामने दरपेश है, जो मुश्किलात हमारे सामने हैं, उनका हल निकालने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क का वो वाहिद चॉइस है जो उन मुश्किलात का ना सिर्फ हम सामना कर सकते हैं मगर सामना करते हुए अवाम का ख्याल रखते हैं। अच्छा सर, ये बता दें कि अवाम को इस मुश्किलात से कैसे निकालेंगे, क्योंकि अवाम तो ख़ास तौर पे नून लीग के कुछ लीडरों के बयानात आए हैं कि इत्तेहादी हुकूमत थी, ये महंगाई या ये मुआहदा और दीगर जो इल्ज़ामात हैं और जिसकी वजह से आज मईशत तबाह है, लोग बेजार हैं, तो उसमें सब पार्टिसिपेट करते थे। ये खाली झंडा लगाने के लिए हमने इनको इत्तेहादी नहीं रखा था। तो ये क्रेडिट आप लेते हैं, डिसक्रेडिट में आप उनके नहीं होते और नून लीग का दौर जो है वो काउंट होता है। तो इस हवाले से क्या मैं इस बहस में नहीं जाना चाह रहा हूँ कि इल्ज़ाम तराशी में, मैं मसाइल का हल निकालना चाह रहा हूँ। मेरा ये ख्याल है, मेरा ये राय है कि अब पाकिस्तान के अवाम ने हर किसी का इक़्तिदार देखा है। पाकिस्तान के अवाम ने तीन दफ़ा किसी एक जमात को, मेरे पार्टी से भी तीन दफ़ा पाकिस्तान के अवाम ने हमें मौका दिया है। अब पाकिस्तान के अवाम को इल्ज़ाम तराशी के बजाय, तकसीम और नफ़रत की सियासत के बजाय अवाम अपने मसाइल का हल चाहते हैं, और मेरा ख्याल में इन मसाइल का हल एक नौजवान की आदत ला सकती। चेयरमैन साहब, आज G20 से मुतालबा किया जा रहा है कि 90 रोज में इलेक्शन कराया जाए। हाँ। आसिफ जरदारी साहब का बयान आया है, उन्होंने कहा कि उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी जो पूरी टीम है उन पर पूरा एतमाद है, और नई मरदमशुमारी के बाद नए हल्का बंदियों के तहत इंतखाबात होने चाहिए, तो 90 रोज में इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे। तो इसी हवाले से आप और आसिफ जरदारी का बयानिया एक नहीं है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक सदर जरदारी का इस बयान है, आप सदर जरदारी का से पूछे कि इस बयान का मतलब क्या है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का CC मीटिंग हुआ था, जिस पे मैंने और सदर जरदारी साहब ने उसका सदारत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CC मीटिंग में हमने ये दो राय पे गौर किया। एक तरफ जो 90 दिन का सिलसिला है, जो आइन में जो लिखा गया है, उस मीटिंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उन सब ने हमें बताया कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए। घर के मामलों में मैं सदर जरदारी साहब की बातों पे पाबंद हूँ। जहाँ तक सियासी बातें हैं, जहाँ तक आइन की बात है और जहाँ तक पार्टी पॉलिसी है, तो मुझे अपने कारकुन के और अपना पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो फैसले हैं उन पे पाबंद हूँ। हमने पिछले जो CC मीटिंग में था उसमें ये फैसला किया था कि इलेक्शन कमीशन से रब्ता होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन से रब्ता किया। हमने अपना एतराज़ात उनके सामने रखे, उन्होंने अपना ख्यालात हमारे सामने रखे। अब मैं रास्ते में हूँ, मैं लाहौर जा रहा हूँ। जैसे हम लाहौर पहुँचते हैं, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग होगा। अगर किसी और का कोई और राय होगा वो उस मीटिंग में मेरे सामने रख सकते हैं। चेयरमैन साहब ये बता दीजिएगा, आजकल जो है वो ये बातें चल रही हैं कि मुआशरत को सुधारेंगे, अब डंडे के जोर पर मुआशरत सुधारेंगे, और कहा जा रहा है कि डॉलर यकमुश्त गिरते हुए नजर आएगा। आपको लगता है कि अगर वाकई डंडे के जोर पर मुआशरत दुरुस्त हो सकती है तो ये 77 साल में क्यों नहीं हो पाई? अब क्या ये 6 महीने की बातों में मुआशरत सुधर गई तो क्या ये लंबा जाएगा सिलसिला? फिर लंबा जाने का तो अगर बिजली का कीमत को नीचे ले आया जा सकता है, अगर डॉलर का रेट कम किया जा सकता है, अगर पेट्रोल की कीमत कम किया जा सकता है, अगर पाकिस्तान के अवाम के मसाइल ख़त्म किया जा सकता है, तो फिर हमारा और पूरा पाकिस्तान के अवाम का कोई एतराज़ नहीं होगा कि ये केयर टेकर्स अपना जो जादू है वो जादू करे। हमारा ख्याल में, मेरा ख्याल में कि ये जो मुआशी बहरान है वो उसमें इतने मसले हैं कि इतना जल्दी हल होने वाला नहीं है, और अगर हल निकलना है तो सिर्फ़ और सिर्फ
पाकिस्तान के अवाम के मुंतखब नुमाइंदे इन मसाइल का हल निकाल सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान के अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो अवाम के दरमियान में होते हैं, वो अवाम की जो मसाइल है उनको जानते हैं, उनको पता है कि इस्लामाबाद में मैं अभी 18 महीना जो है ना या इस्लामाबाद में या जहाज़ में गुज़र के वापस आया हूँ, जो ज़मीनी हक़ाइक़ है और इस्लामाबाद में जो एक इम्प्रेशन पैदा किया जाता है उसमें फ़र्क होता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल जमहूरियत है और पाकिस्तान के तमाम मसाइल के हल पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे के साथ है। जहाँ तक केयर टेकर हुकूमत है, हमारा कोई एतराज़ नहीं है केयर टेकर हुकूमत से। केयर टेकर हुकूमत अपना काम करे, जो माजी के पॉलिसीज़ है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, नया पॉलिसीज़ तो कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक वो इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। और हमारा केयर टेकर से कोई एतराज़ नहीं है, मगर ये चेयर टेकर्स ना बने। अगर ये चेयर टेकर्स बनते हैं तो फिर हमारा एतराज़ होगा। बिलावल साहब, ये कांग्रेस पार्टी में आजकल जो है वो बड़ा गैप नजर आ रहा है। ये जब पीडीएम थी तब इनमें ज्यादा उपरकत दिखने में आ रही थी, और दोनों की जानिब से आजकल जो उनके नुमाइंदों की जानिब से बयानात आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है। उसकी वजूहत क्या है? एक एक करके मैं सवाल का जवाब दे सकता हूँ भाई। कौन सी वक्त भाई? अदम एतमाद के वक्त हाँ, इलेक्शंस तो उस वक्त भी हो सकते थे, मगर वो तो खान साहब का मुतालबा था। तो या मेरा समझ से ये sort of I don't understand your point, क्या पीडीएम का मौक़िफ़ ये है कि हमें खान साहब दुरुस्त था और हमें वही करना चाहिए था जो खान साहब हमसे करवाना चाह रहा था। अब मेरा ख़्याल में पाकिस्तान के अवाम सच चाहते हैं। पाकिस्तान के अवाम ये चाहते हैं अपने क़ियादत से कि आप अगर मसाइल पे बोलेंगे तो सच के साथ उन मसाइल पे बोले। अगर आप उस वक्त हुकूमत छोड़ सकते थे तो हम अपना जो अदम एतमाद है वो पीडीएम के जमातों के वोट्स के साथ के बग़ैर कामयाब तो नहीं हो सकता था। तो अगर वाकई उनमें से किसी को ये ख्वाहिश था कि अदम एतमाद के बजाय इलेक्शंस हो, तो फिर वो उस वक्त हमारे साथ नहीं देते, हम नाकाम होते और हम इलेक्शंस की तरफ भर सकते थे। मेरा ख्याल में माजी की बातों हम माजी में छोड़े, हम आगे देखें। इस वक्त जो है आप सब मुझसे उम्र में बड़े हो, आप मुझे बताएं, आपको क्या याद है पाकिस्तान की तारीख़ में हमने कभी इस किस्म के मुआशी मुश्किलात को पहले इस किस्म के मुआशी मुश्किलात आपने देखे हैं? अगर हम मानते हैं कि इस वक्त तारीख़ी बेरोज़गारी है, तारीख़ी गुर्बत है, तारीख़ी महंगाई है, तो ये तकसीम और ये नफ़रत की सियासत और ये इल्ज़ाम तराशी की सियासत के बजाय हम आगे बढ़े और इन मसाइल का हल निकालने की कोशिश करें। बिलावल साहब, इसलिए कि दो सवाल हुए थे तो एक में रहना। बिलावल साहब, खारजा अमूर पे आपकी गहरी नज़र है। G20 जो हो रहा है पड़ोस में, एक मुल्क है उन्होंने बाइकाट किया है। आप अगर वज़ीर खारजा की नज़र से देखें तो बाइकाट। दूसरा अफगानिस्तान, आपने भी कोशिश की जो बॉर्डर पे, आज फिर हालात ख़राब होते जा रहे हैं। सर आखिरी सवाल है, इधर पीपल्स पार्टी सिंध में आज़ादी सहाफ़त की बात करती है। नेशनल प्रेस क्लब बदीन के सदर हैं, उनको सर सच बोलने पे सर जो उन्होंने मंशात पे जो लिखा है उसके हवाले से एसएसपी ने सर हफ्ता पहले उसको उठा के सर उसको यरगमाल बनाने की कोशिश की। व्हाट? सर बदीन में नेशनल प्रेस सर हम सब प्रेस क्लब, आपका प्रेस क्लब का सदर को वो सर नफीस मेमन वो मंशात पे लिख रहे थे सर, उन्होंने एसपी ने उठा के शौकत मेमन नहीं, मैं इसका सवाल कि आप अपना सहाफ़ी भाई के बारे में मुझे बता दे, ये क्या हो रहा है, ये किसने? नेशनल प्रेस क्लब में बदीन में उनके सदर है नफीस मेमन, उन्होंने मंशात पे बात की। बदीन में मंशात का इशू बहुत है सर। जब उन्होंने बात की मंशात पे तो उन्होंने एसपी शारमा चाचर जो कल ड्यूटी थे सर सीपीओ ब्रांच में हुए, उन्होंने उठा के इन्हें यरगमाल बनाने की कोशिश की। अच्छा, मैं तो मैं बिल्कुल आज़ादी सहाफ़त के साथ हम खड़े ही होते हैं और आज भी खड़े हैं, और मैं अपना पार्टी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस इशू के बारे में मुझे जो हकीकत है वो हमें बता दे, ताकि हम
इसका हल निकाल। गुलाम साहब वो जवाब नहीं दिया आपने। गुलाम साहब जवाब नहीं दिया। इतने सारे जहाँ तक G20 की आपका सवाल है और अफगानिस्तान के बारे में आपके सवाल है, मैं समझता हूँ कि ख़ारजा सतह पे पाकिस्तान के लिए बहुत से मौके हैं। पाकिस्तान ख़ारजा सतह पे पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत से मौके हैं, मगर हमें अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा, अपने आप को स्टेबल बनाना पड़ेगा पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, ताकि हम वो तमाम फ़ायदे का जो पोटेंशियल है उस फ़ायदा का हम हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का CC मीटिंग लाहौर में होने जा रहा है, वहाँ जो ये आपका सवाल है उसका जवाब दे सकते हैं। थैंक यू। बदीन में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने पीपल्स पार्टी के जाले इलेक्शन के लिए तैयार हैं, अभी इलेक्शन का ऐलान नहीं हुआ, इलेक्शन शेड्यूल का भी ऐलान नहीं हुआ। अवाम के चेहरों से वाज़ेह है कि वो परेशान हैं, उनकी तकलीफ हम दूर करेंगे। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। 6 बजे की हेडलाइंस के साथ दोबारा हाजिर होंगे, देखते रहिए अब तक। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।